ક્ષેત્રે સંશોધન, ટેકનોલોજી અને કોર્પોરેટ ટ્રેનિંગ ચારેય ક્ષેત્રોમાં 2 દાયકાથી વધુ સમયથી નોંધપાત્ર યોગદાન આપનાર એક પ્રતિષ્ઠિત એકેડેમિક લીડર અને ઇનોવેટર છે. તેઓ હાલમાં ડિરેક્ટર ઓફ ઉમા કૃષ્ણ સેટ્ટી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ સ્ટડીઝ મુંબઈ, ડિરેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ગ્રોથ એન્ડ સ્ટ્રેટેજીસ અન્ના લીલા કોલેજ મુંબઈ, co-founder and director of પિતાશ્રી સોફ્ટવેર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ રૂપે સેવા આપી રહ્યા છે, જ્યાં તેઓ જનરેટિવ AI આધારિત હેલ્થકેર અને એજ્યુકેશન પ્રોડક્ટ્સનું નેતૃત્વ કરે છે. NEP 2020ના અમલીકરણમાં તેમનું યોગદાન અત્યંત મહત્વનું છે. તેઓએ વિવિધ યુનિવર્સિટીમાં NAAC accreditation, UGC 2F recognition, autonomous status development, IQAC and governance reforms જેવી અનેક ક્રાંતિકારી પહેલો સફળતાપૂર્વક અમલમાં મૂકી છે. તેઓએ BSc આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એન્ડ મશીન લર્નિંગ, ડેટા સાયન્સ, ક્લિનિકલ ડેટા સાયન્સ, સાયબર સિક્યુરિટી જેવા અનેક ભવિષ્યમુખી શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો ડિઝાઇન કર્યા છે અને ચતુર બોર્ડ જેવા AI આધારિત સોલ્યુશન્સનું નિર્માણ કર્યું છે. ડોક્ટર પાટીલ 40થી વધુ સંશોધન પેપર્સ, 6 રેફરન્સ બુક્સ અને AI હેલ્થકેર, ક્લાઉડ સિસ્ટમ્સ, ઇન્ટેલિજન્ટ ઓટોમેશન ક્ષેત્રે ઘણા પેટન્ટ ધરાવે છે. તેઓ મુંબઈ યુનિવર્સિટી ખાતે PhD ગાઈડ તરીકે કાર્યરત છે. તેઓએ અત્યાર સુધી સેમસંગ, NTUC સિંગાપોર, આદિત્ય બિરલા જેવા વૈશ્વિક સંસ્થાઓ સાથે 1000થી વધુ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ્સ આપ્યા છે, જેમાં જનરેટિવ AI, બિઝનેસ ઇન્ટેલિજન્સ અને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન મુખ્ય છે. શૈક્ષણિક નેતૃત્વ, ટેકનોલોજીકલ ઇનોવેશન અને કોર્પોરેટ અનુભવનો અદ્ભુત સમન્વય ધરાવતા ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પાટીલ એ આજે દુનિયાને નવા યુગમાં લઈ જવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. હવે હું મોટી ખુશી સાથે એમનું સ્વાગત કરવા પ્રોફેસર ખુશ્બુ કાયસને આમંત્રિત કરું છું. આજે તેઓ હેન્ડસમ વર્કશોપ દ્વારા AI ને સાચા અર્થમાં જીવન બનાવી રહ્યા છે. We welcome you, sir. Good evening all. We are in the last part of the session, right? तो अभी जहाँ से थोड़ा एक फीडबैक लिया है, रिव्यू लेके, okay? I am not that good at Gujarati, okay? I can understand your questions, and if something is difficult, AI is there with me to answer your questions, okay? So you can fully speak in Gujarati, not an issue. I will try. So to answer and address your questions. Maybe since the theme is Vani, right? So with respect to that, थोड़ा प्रयास करूँगा कि गुजराती में मैं आपका कुछ आंसर्स आपको समझ के आपके क्वेश्चन को जवाब दे सकूँगा. थोड़ा जो मैं समझने का प्रयास किया है कि काफ़ी आपके सेशंस हुए और आपने जनरेटिव AI Day 1 से सुनना शुरू किया है, बराबर? और काफ़ी चीज़ें शायद हो सकता है जनरेटिव AI टूल्स के ऊपर पॉपुलरली ChatGPT के बारे में डिस्कस किया होगा ज़्यादा, ठीक है? तो थोड़ा ChatGPT से हट के, जैसे कि सेशंस का थीम और ऑब्जेक्टिव भी हैंड्स ऑन दिया था, बराबर? मैं हैंड्स ऑन ही लूँगा. आई डोंट लाइक टू स्पीक मोर बट विल डेमोन्स्ट्रेट यू, ताकि आप आपके एज अ टीचर, सभी टीचर्स प्रोफाइल वाले, बराबर? टीचर्स, रिसर्चर्स एंड ऑल, तो आप जो चीज़ें शायद हम डेली यूज़ करके भी पता नहीं चलती, वो आज मैं प्रयास करूँगा कि आपको सब यूनिक देखने मिले, ठीक है? और आपके डे टू डे लाइफ में आप आपका काम आसान कैसे कर सकते हो, ये दिखाने का मैं प्रयास करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले होता है हमारा कंटेंट जनरेशन, जो हमारा एक बेसिक काम होता है, बराबर? जैसा लेडीज़ को रेसिपी के बारे में एक हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है, शाम को क्या बनाना है, तो फिर खाने वालों को तो डिश दिखती है और जो बनाने वाले उनको कंटेंट पे फोकस करना पड़ता है. जो बनाते हैं वो समझ पाते हैं कि रॉ मटेरियल क्या लगने वाला है, बराबर? तो जैसे ही टीचर्स जब बोला जाता है, अरे कल मुझे लेक्चर लेना है, तो लेक्चर लेना है यानी हमारा रेसिपी बनाने का प्रोसेस शुरू होता है, बराबर? उसके लिए क्या लगता है? कंटेंट. और आज की दुनिया में हम NAAC IQAC के लिए ज़्यादा काम करते हैं स्टूडेंट से ज़्यादा,
बराबर, ताकि हमारी क्वालिटी हम शोकेस कर सके। तो ये दौरान दिक्कतें आती है कि अरे टाइम कब मिलेगा लेक्चर प्रिपेयर करने का। चाहते तो हम बहुत कुछ है, कभी एआई के ज़माने में हम हमारा लेक्चर कैसे इफेक्टिव बनाएं, बराबर। तो पीपीटी बनाना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। उसके अलावा पीपीटी में कभी कभी हम चाहते हैं, जैसे नैक में आप लिखते लिखते बोलते हो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वी अप्लाई एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो ढूंढते बैठते हैं हम एक्सपीरियंस कभी एक्सपेरिमेंट किया, बराबर। देन हम इंटरेक्टिव सेशंस, तो इंटरेक्टिव सेशन यानी आप कुछ उसको कंटेंट दिखा रहे हो और उसके बेसिस पे आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, बराबर, और वही प्रयास मैं आपके साथ भी करूँगा। लेकिन इस तरह का कंटेंट कैसा बनाए, तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले सामने आता है चैट जीपीटी, लेकिन मैं चैट जीपीटी पे अभी नहीं जाऊँगा। चैट जीपीटी के अलावा और भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो हम समझने का प्रयास करें, ठीक है, चलेगा ना ये सब? ओके, तो सभी लोग अभी एक गूगल यूज करते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों तरफ भी आऊँगा मैं, कंटेंट बनाने के लिए जाते हैं। कितने लोग अपने सेशंस में वीडियो का कुछ क्लिप्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपने सेशन के ऊपर? वीडियो का यूज कितने लोग करते हैं? ओके, और करना चाहते हैं कितने लोग? समय नहीं मिलता बात अलग है, करना चाहते हैं कितने लोग? वेरी गुड, वेरी गुड। यानी काफी लोग चाहते हैं कि मेरे एक सेशन में एक वीडियो। दिक्कतें क्या आती है? अरे वीडियो कौन शूट करेगा, बराबर। ये वीडियो शूट करो, फिर उसको एडिट करो, और फिर बाद में समय मिलेगा तो मैं फिर पब्लिश करूँ, और बाद में पता चले अरे मैंने शर्ट ठीक से पहनी नहीं थी, ठीक है, अरे आज आवाज ठीक है, कुछ जरूरत नहीं। लेट्स सी हाउ इफेक्टिव वीडियोस कैन बी क्रिएटेड विद रिस्पेक्ट टू योर सब्जेक्ट, ओके। चलो, तो आपका जो रेगुलर जीमेल होता है, हम डेली यहाँ तक कि हमारा जीमेल ओपन करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा आपको 2 स्टेप आगे जाने दूँगा, ओके। मैं वो नया वर्ड सुना, अगले चौकड़ी पे जाओ, बराबर। तो मैं ये चौकड़ी पे जा रहा हूँ, एंड हम यहाँ तक भी आ जाते, लेकिन एक मिसिंग सेक्शन है जो हम एक्सप्लोर नहीं करते, गूगल वीडियोस, ओके। तो जब हम यहाँ आते हैं, so it is giving us multiple options, आपको काफ़ी ऑप्शंस पता चलेंगे कि आप खुद का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, आपका लैपटॉप का कैमरा, वॉइस, ये करके आपके पास खुद बुक्स पड़ी है, उसमें से आपका वीडियो बन जाएगा, ठीक है। फिर बाद में ऑप्शन आता है एआई अवतार, एक आपका कैरेक्टर बनाओ, ओके, और आपका टॉपिक रिलेटेड कंटेंट बना सकते हो। फिर बाद में कन्वर्ट स्लाइड्स, आपके स्लाइड्स होते हैं, काफी बार अच्छे स्लाइड्स हो सकते हैं, तो स्लाइड्स को आप वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। और लास्ट का जो एक है स्टोरी बोर्ड, टेम्पलेट तो बिल्ट इन टेम्पलेट्स है, स्टोरी बोर्ड है, तो आप खुद आपके स्टोरी बोर्ड बना सकते हो। अभी ये आपके लिए फ्रीली एक्सेसिबल है, लेकिन वो 15 GB खत्म होने के बाद कुछ लोग पे करते हैं, बराबर, स्टोरेज स्पेसेस। तो जो लोग पे करते हैं उनके लिए कुछ एक एडिशनल फीचर इधर का एनेबल होता है, ओके। वो एडिशनल फीचर है कि मैं प्रॉम्प्ट दूंगा कि मुझे कल सप्लाई चेन मैनेजमेंट सीखना है, कोई किसी का सब्जेक्ट डोमेन मुझे पता चले, एक कोई भी सब्जेक्ट, उसके हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। फार्मेसी में कोई एक टॉपिक बताओगे, एक छोटा कॉन्सेप्ट पढ़ाना है सब, कोई भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ओके। चलो हम ये टॉपिक पे सेशन में, तो मैं एक वीडियो बनाना चाहूँगा, ओके। Google Reads and here आपको जो टेम्पलेट थी वो टेम्पलेट ले लो, ओके। आपका जो टॉपिक
डर लगता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर बराबर रीजंस या क्या समझना चाहते हैं प्रोसेस या रीजंस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बराबर तो ये टाइटल लेके हमने शुरुआत किया गुजराती में हम ट्राई कर सकते हैं ठीक है तो हमने एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया और इसके लिए अभी हम वीडियो बनाने की प्रोसेस में लग जाएंगे ठीक है और जब ये वीडियो की क्वालिटी बन जाएगी सबसे पहले क्या होता है वीडियो का प्रोसेस एक स्टोरी बनती है बराबर उसमें क्या है इंट्रोडक्शन है डेफिनेशन है द आर्ट्स इन एबिलिटी टू परफॉर्म एफिशिएंटली यू आर द सब्जेक्ट एक्सपर्ट तो आपने बताना ये सही है क्या आई डोंट नो एनीथिंग आई एम जस्ट द फैसिलिटेटर सभी सब्जेक्ट के डोमेन वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये टूल आप यूज कीजिए फ्री में आपके बढ़िया वीडियोस बनाइए ठीक है आउटलाइन बराबर है अगर आप खुश नहीं है इसको डिलीट कर सकते हो कुछ ऐड करना चाहते हो आप ऐड कीजिए आपको एडिट करना है आप एडिट कीजिए ठीक है ओके सो टोटल आपके जो सीन्स बन रहे हैं ये देख सकते हो आप चलिए प्रोसीड आगे जाए हाँ एक थोड़ा डिस्क्लेमर थोड़ा अगर साइलेंस नहीं रहा प्रोसेसिंग में टाइम लेता है ओके तो आप देख सकते हो इसमें से आपको एक टेम्पलेट सिलेक्ट करना है किस तरह से वीडियो का टेम्पलेट है कौन सा टेम्पलेट पसंद है आप बताइए बोलो कोई भी चलेगा चलो तो इस तरह से टेम्पलेट दिखेगा ठीक है डोंट वरी ये लोग नहीं आएंगे उसमें ये है गूगल का कमाल ठीक है कॉन्सेप्ट फाइनली टू अप्रूव द कंटेंट वी आर द एक्सपर्ट कुछ लोग बोलते रहते AI is going to replace you okay AI is going to replace the jobs okay मैं लास्ट कुछ अगस्त में भी आया था तो मेरे रिमार्क्स यही थे AI is to assist you use AI for assistance AI humans with AI अगला जो एरा होने वाला है ह्यूमंस विद एआई जिसके पास एआई नहीं वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा देखो एक प्राचीन काल से था जो योद्धा है वो सर्वाइव करता था ह्यूमंस विद वेपन्स बराबर बाद में दौर आया ह्यूमंस विद नॉलेज ह्यूमंस विद विजडम बराबर अभी जो एरा है ह्यूमंस विद बाद में बीच में एक आया ह्यूमंस विद टेक्नोलॉजी विदाउट टेक्नोलॉजी यू आर इलिटरेट अभी थोड़ा क्या आ गया है टेक्नोलॉजी में पीछे ह्यूमंस विद एआई ओके तो एआई इस्तेमाल करते आना चाहिए और कोई बड़ी बात नहीं जब ह्यूमन इंटेलिजेंस है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट अ बिग डील तो शायद उसने कंटेंट बना के रखा है आपको कुछ लगता है आपका वॉइस ओवर आप ऐड कीजिए आपको कुछ रिकॉर्ड करके ऐड करना है आप रिकॉर्ड कर सकते हो तो जो भी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है हम पब्लिश करने से पहले एक बार प्ले करके देखते हैं इधर ऑडियो लगेगा क्या Welcome to an in-depth look at the Is it mechanism audible? of action of congestive heart failure. Congestive heart failure, or CHF, is a critical topic in cardiovascular medicine. Let's begin with an introduction to this condition. At its core, CHF is defined as the heart's inability to pump enough to meet the body's metabolic demands. The underlying pathology involves several interconnected mechanisms, which we can categorize into three main phases: reduced cardiac output, short-term compensatory responses, and the chronic effects. The primary mechanism initiating the cascade of events in CHF is a reduction in cardiac output. This reduction stems from impaired ventricular function, which can manifest as systolic failure, where the heart can't contract forcefully, or diastolic failure, where the heart struggles to relax and fill properly. Both forms of impairment ultimately lead to a decrease in stroke volume and consequently a diminished cardiac output. When cardiac output drops, the body attempts to compensate through powerful short-term mechanisms designed to maintain adequate blood pressure and perfusion. One of the most significant
So now you are the one having the expertise of your subject. जब आपको सही लगता है कि ये आप वैलिडेट कर सकते हो तो फिर बाद में आप इसको स्टूडेंट में पब्लिश कीजिए। क्या पीपीटी से ये बेटर है? ये ज़्यादा रिलेट होता है, बराबर? क्योंकि अभी पीपीटी भी ट्राई हो चुका है ना, इसलिए मैंने कोई भी पीपीटी रन नहीं किया। शुरुआत मैंने एक भी पीपीटी लोड नहीं किया और ना ही मैं करने वाला हूँ, ठीक है? हैंड्स ऑन बोला है तो हैंड्स ऑन होना चाहिए। तो शुरुआत हमारी इस तरह से हुई, आप आपका वीडियो इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। अभी अगर आप मोबाइल से कनेक्टेड हो, आपका गूगल ड्राइव में जाइए, गूगल न्यू वीडियो देखिए, एक वीडियो तैयार करके देखिए, रूम में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको खुद का रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है। गूगल ड्राइव न्यू ऑप्शन में न्यू वीडियो, ये देखो ये न्यू और इधर गूगल वीड्स, ये ऑप्शन आएगा देखिए। I can show you some videos again, like देखो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऐसे वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं। नहीं है फोन में नहीं है, ओके ठीक है, लेकिन आप आपके गूगल ड्राइव में जाओगे, आपके लिए ये ऑप्शन एनेबल रहेगा, ओके? आप लैपटॉप के थ्रू या आपके डेस्कटॉप के थ्रू आप एक्सेस करोगे, ये ऑप्शन अवेलेबल है। सेकेंड है, आपके पास कोई पीपीटी है, उसको भी आप पीपीटी कर सकते हैं। चलो हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे, उसमें ये रिकॉर्ड वाला सिंपल ऑप्शन है जो आप मोबाइल या आपके इस पे अपलोड मीडिया फ्रॉम ड्राइव, ओके? अभी मेरे पास कुछ कंटेंट है, सपोज ड्राइव में कुछ पड़ा है, ओके? सो आई कैन यूज द ड्राइव, चेक द कंटेंट, ठीक है? सपोज मेरा कुछ ड्राइव में डेटा है या गूगल फोटोज है, आप उसमें से बना सकते हो। Upload, you will upload the content something like custom files। चलो एक सिलेबस है मेरे पास, ओके? ये सिलेबस को मैं अपलोड करके कंटेंट फॉर्म में बनाने का ट्राई करूँगा, आने को यूज करता हूँ। आप आर्टिफिशियली भी बना सकते हो, आपको एक इमेज चाहिए, ओके? स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट, आपको यहाँ से वो कंटेंट बना के भी दे देगी। जनरेट एन इमेज ऑफ, क्रिएट एन इमेज ऑफ वुमन स्पेस, या चलो ये डिस्क्रिप्शन दे दिया है, इमेज ऑफ, ओके? इमेज ऑफ कस्टमर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ओके? क्या कोई अलग कॉन्सेप्ट चाहिए आप बताइए उसके हिसाब से, और ये आप यहाँ से जनरेट कर करके इधर करके आपका कंटेंट बनाओ, ओके? आई विल प्रिपेयर 3 इमेजेस क्विकली फॉर यू। यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हो, आपको कुछ चाहिए आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। स्क्रिप्ट explain process of RNA या explain RNA structure, ठीक है? DNA structure,
बनेगा, इसके हिसाब से नीचे वीडियो बनेगा, आपको लग रहा है आप उसके हिसाब से प्लेस कर दीजिए। ओके, आफ्टर ये देखो, ये कस्टमर लाइफ साइकिल का इमेज बन चुका है, इसको प्लेस कर दीजिए। गॉट इट? If you want to add new frame, ओके, यहाँ से आपको चाहिए रिकॉर्ड करके ऐड करना है, रिकॉर्ड करके ऐड हो जाएगा। Okay, so this way you can add the content for here. So in this case, आप बाजू में स्क्रिप्ट लिखिए, ओके, रीड रोलिंग, आपको जिस तरह से चाहिए आप स्टार्ट करो रिकॉर्डिंग। So here we are demonstrating how to create the content for any subject. ये देखो, ये मेरा वीडियो कंटेंट आ गया। ओके, अभी ये सब होने के बाद सपोज अभी ये कैसा दिखता है, ओवरऑल वीडियो आप बना सकते। ये हुई एक फ्रेम। So here we are demonstrating how to create the content for any subject. यानी कुछ जरूरत नहीं कि अभी किसी की पीपीटी यूज करना है। एआई के जमाने में अभी रियलिस्टिक क्या दिखाओगे, ओके, वही टूल से लेके हमको रियलिस्टिक कंटेंट देना है। समटाइम्स हो सकता है मेरा कंटेंट प्रिपेयर करते वक्त कुछ थॉट्स आ रहे अच्छे, तो इमीडिएटली आई शुड रिकॉर्ड एंड कैप्चर इट। ओके, कभी कभी होता है हम काफ़ी अच्छे रिसर्च मोड में रहे तो काफ़ी नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हैं और सडनली क्लासरूम में कोई स्टूडेंट पूरा वो क्लाइमेक्स चेंज कर देता है, बराबर, तो उस वक्त फिर जो इनपुट देना है वो शायद आप दे नहीं पाते। सो बेस्ट वे क्या करना है, रिकॉर्ड, कैप्चर, यूटिलाइज इट। ओके, तो आप ऐसे इफेक्टिव वीडियोस आप इस मोड से बना सकते हैं। बट इट हाउ यू फाउंड दिस? इजी है, कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। ओके, फ्री टूल अवेलेबल। हाँ, दैट प्रॉम्प्ट वाला जो ऑप्शन था दैट विल बी एनेबल जब आप गूगल स्पेस के लिए पे करते हो। आपको क्योंकि इतने वीडियोस बनाओगे तो आपको गूगल स्पेस लगने ही वाला है। ठीक है, मैं कोई मार्केटिंग करने नहीं आया, आई एम जस्ट शोइंग यू द फीचर्स हियर। ओके, आगे जब हम जाएंगे अभी, एनी क्वेश्चंस हियर? कुछ क्वेश्चंस है? नहीं। अभी आप लोग जब ईमेल डे टू डे लाइफ में हमको ईमेल लिखने होते हैं तो चैट जीपीटी का तो इस्तेमाल होता ही है, बराबर, कि भाई अभी अटल एक्टिविटी के लिए 6 दिन जाना है या 5 दिन जाना है कहीं, तो पहले आपके डायरेक्टर प्रिंसिपल को, उससे पहले एचओडी को कन्विंस करना होता है, फिर बाद में डायरेक्टर को कन्विंस करना होता है। ओके, मेल कैसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये सब आता है। रिसर्च प्रपोजल अगर आपको ड्राफ्ट करना है और आप डीएसटी के लिए कोई प्रोजेक्ट सबमिशन कर रहे हो, ईमेल कम्युनिकेशन करना है, तो इफेक्टिव ईमेल के लिए आप क्या करते हो, चैट जीपीटी पे जाके आपका ईमेल बनाते हो। अभी चैट जीपीटी पे जाने का जरूरत नहीं है, आपके ही ईमेल बॉक्स में सब कुछ एआई एनेबल चीज़ें रहेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो इधर मेरा एक कंपोज ऑप्शन है। ओके, टू सपोज में ये फिलहाल डेमो है तो मेरे लिए उसको मेल लिखता हूँ। ओके, रिसर्च प्रपोजल on use of AI in healthcare। डीएसटी के लिए आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हो, डीएसटी एआई को मालूम नहीं है तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, अपने मेल का शीर्षक बना दिया और यही मेल को अभी आप अच्छा ड्राफ्ट करना चाहते हो, बराबर।
बिना चैट जीपीटी में जाके कैसा करेंगे? आप इधर एक ऑप्शन देख सकते हो, एआई कंपोज। ये मैं राइट एन ईमेल और मैंने टॉपिक दे दिया। ओके, आपके मेल बॉक्स में नहीं आएगा तो इनेबल करना होगा बस। मैं बता दूँ कैसा इनेबल करना। ओके, देख सकते हो साइंटिफिक मेल बन रहा है। ये बनाते बनाते एक हफ्ता जाता है। ओके, एक हफ्ते का काम हम कुछ मिनट्स में करने जा रहे हैं। देखो पूरा टाइमलाइन, पूरा प्रोजेक्ट का जिस इतना तो हम रियल में भी नहीं सोचते। ओके, तो लैंग्वेज कैसा चाहिए भाई? स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने बात कर लिया, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चाहिए, कमल प्रोफेशनल चाहिए तो प्रोफेशनल मोड सिलेक्ट करो। तो जिस तरह का टोन आपको चाहिए वो टोन में आप वो एआई मोड को डाल दीजिए और आप उसको बस इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। ब्लाइंडली मत भेजना, ठीक है? इसको पढ़ के भेजना। पता चला ग्रांट मिलने की जगह फाइन लग गया। ओके, उल्टा ना हो जाए, आपके पास रिकवरी के लिए आ गए, ठीक है? तो पढ़ के अच्छे से आपको बताना है। अभी एक बार क्या हुआ, ऐसे मेरे काफ़ी ट्रेनिंग शुरू होते कॉर्पोरेट में, तो पहले डिलेक्ट के एम्प्लॉइज़ के लिए वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हुआ। फिर उनके जो रिपोर्टिंग मैनेजर्स थे, मैनेजर्स ने सेशन शुरू होने के पहले एक कॉम्प्लीमेंट किया, सर हमारे लोग बहुत काम करते हैं लगे, वो एआई का ट्रेनिंग के बाद काफ़ी इफेक्टिव हो गए, काम करने लगे। फिर मैं सोचने लगा यार एआई तो काम कम करवाता है, फिर ये काम किसी का बढ़ाया है? नहीं बोले, वो रात को 12 बजे 1 बजे भी मुझे मेल आती है, तो इतना काम करने लगे। ओके, मैं समझ गया, ठीक है? तो फिर मैंने ऐसे ही जब मेल का ये डेमोन्स्ट्रेशन दिया, फिर उनको मैंने बताया कि भाई ये मेल जब होता है आप शेड्यूल सेट कर सकते हो। तो अभी आपके प्रिंसिपल को बताना है, मैंने रात को 2 बजे तक बैठ के काम किया है, ठीक है? ये पीएम का ये कर दो बस। आपको कॉलेज आने के पहले 2 छुट्टी मिल जाएगी, बराबर? तो शेड्यूल सेट कभी भेजना है, कल 7 तारीख को सुबह, ठीक है? यानी आज रात भर बैठ के मैंने शेड्यूल कर दिया। तो जब जैसे ही वो मैनेजर को पता चला, फिर देन दे अरे ये था क्या ऐसा, सो दे वर सरप्राइज। ये टीचर था जो 1 बजे वो मेल भेजते थे, लेकिन ये रात को मेल भेजने के लिए नहीं बनाया गया। ये पर्पस है। अभी लास्ट 2-4 दिनों से काफी लोग इधर एक सेशन कंडक्ट करके जा रहे हैं, ओके? और अपना रवि सर का काम बढ़ा के जा रहे हैं सब लोग। उनको थैंकिंग लेटर भी तो भेजना है, बराबर? सर का काम पेंडिंग है। तो जब वो सब शांति में बैठेंगे, एक दिन बाद बैठेंगे और सबको थैंकिंग लेटर, कुछ नहीं करना है। शायद ये वर्कशॉप पहले हो जाता तो आपका काम आसान हो जाता। तो प्रॉम्प्ट रिप्लाई कैसा देने का है? राजेंद्र पाटिल 2 से 4 में ना इसको 4:15 बजे लेटर चला जाना चाहिए। शेड्यूल सेट में आप थैंकिंग लेटर बना के रखो, ठीक है? तो जितने जितने सेशन लेने के लिए आएंगे सबके मेल शेड्यूल में डाल दो। सर इधर बात कर रहे हैं, उधर उसको थैंकिंग मेल भी चला गया, ठीक है? सो दिस इज टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। तो एआई के बाद अगर कोई बोलेगा यार बहुत काम करने लगे, तो फिर ये फेलियर ऑफ सेशन है। ओके, वर्क स्मार्टली नाउ एंड इफेक्टिवली, क्वालिटी। एआई बना इसीलिए, एआई किसी को रिप्लेस करने का, एआई कुछ बोलता नहीं आई एम रिप्लेसिंग ह्यूमन बीइंग। कोई ह्यूमन बीइंग ही बोल रहा है एआई इज गोइंग टू रिप्लेस ह्यूमन बीइंग, और हम अफवाह पे ज्यादा भरोसा करते हैं। सब एआई बात चल रहा है, बट एआई इज टू असिस्ट, एआई इज टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी। ओके, हमने माइंडसेट बनाया है 8 घंटा तो मिनिमम है हमारा काम करने, बराबर? 8 घंटा तो काम करना ही है, एक्स्ट्रा 2 घंटा 3 घंटा ये कॉम्प्लीमेंट्री हो। So but then why we need this much? Within 8 hours work only 2 hours. In 2 hours you can do lot of things. You can do
so many things which can be done in a month. एक महीने के टाइम स्पैन में जो काम कर सकते हो, जो 2 घंटे में आप काम कर सकते हो। 50 लोगों को मेल भेजने आराम से आ जाएंगे। ओके, तो ये सब अभी आपको लग रहा है अरे वो स्केड्यूल में गलत हो गया कुछ तो भी, फिर से आप स्केड्यूल ऑप्शन में जाइए। You will see all schedule mail. You wish you can edit or you can delete it. ठीक है, तो डरना नहीं है कुछ। आधी चीजें मत ध्यान में रखो, अरे वो स्केड्यूल तो कर दिया लेकिन जोड़ना किधर है, डिलीट कैसा करना है। तो here is the option, got it? ये काफी पुराना है, माइक्रोसॉफ्ट में भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप माइक्रोसॉफ्ट में को-पायलट इंटीग्रेट करके ये चीजें कर सकते हैं। यूजफुल है? भेजोगे 2 बजे मैसेज? So now people they know किसी का 2 बजे मैसेज आया तो कैसे आया वो पता चल जाएगा। ठीक है? Anyway, now the other thing is, काफी बार मेल्स आते हैं, मेल में पूछा कुछ जाता है, हम जवाब कुछ देते हैं। कभी कभी लंबा मेल रहा ना, आजकल हम शॉर्ट मेमोरीज में हो गए। कभी कॉन्फ्रेंस का मेल आता है, वेरी सरप्राइजिंग एंड ना वो फनी पार्ट आता है। तो रवि सर ने मुझे मेल भेजा, सर ये ऐसा ऐसा इवेंट है जो मुझे शायद 4-5 महीना पहले बोल के रखा था। तो मैंने 2 बार उनको फ़ोन किया, सर वो कभी है, ठीक है? तो कभी यानी बीच में कम्युनिकेशन नहीं था, मुझे है कि नहीं है वो प्लान करना होता है, क्योंकि सेम डेट को जब कुछ अलग असाइनमेंट आती तो फिर वो कन्फर्म करना होता है। तो वी कन्फर्म दैट। या कॉन्फ्रेंस का मेल भेजा, अरे ऐसा ऐसा कॉन्फ्रेंस है, तो कॉन्फ्रेंस की डेट दी, सब कुछ है, तो भी सर लास्ट डेट कभी पेपर सबमिशन का उसने दिया है ऑलरेडी, ठीक है? तो भी हम पूछते हैं लास्ट डेट कभी, ठीक है? सो समटाइम्स द इंटरप्रिटेशंस आर देयर। तो व्हाट यू कैन डू, तो सपोज एक कोई मेल है, ये एक पैनल डिस्कशन का कुछ मेल आया है हमारे पास, ओके, जो लंबा है, अभी तक टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने पढ़ा नहीं है, इसलिए उसका रिप्लाई भी नहीं। लेकिन ये जेमिनी ऑप्शन आपको मदद करेगा, आपके शायद इसमें इनेबल हो गया ये फीचर, ओके। ये क्या क्या दिया है, ऐड टू कैलेंडर फ्रॉम दिस मेल, समराइज दिस ईमेल। तो भाई मुझे बताओ पहले क्या है वो ईमेल में दिया हुआ। भाई वो बंदा जो है प्रकाश बोले फॉरवर्डेड एन ईमेल फ्रॉम शंकर प्रताप ऑफ आईआईटी, ठीक है, रिगार्डिंग देयर पैनल डिस्कशन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम कोलैबोरेशन। ये क्या है, देसाई सेठी स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आईआईटी मुंबई इन पार्टनरशिप विद टीयू डॉटमन, ऐसा ऐसा कुछ इवेंट है, कभी 10 दिसंबर 3:30 बजे आईआईटी कैंपस में। सेशन प्रॉम्प्टेड बाय विजिट फ्रॉम टीयू डॉटमन, ठीक है। अभी हु आर द स्पीकर, किससे बात करने वाला मुझे पता करना है, ओके। अभी इतना ही नहीं, ये स्पीकर जो है प्रोफेसर टेसा फ्लैटन, अभी मुझे इनके बारे में भी जानना है, तो हु इज टेसा फ्लैटन, इसका भी वो इंफॉर्मेशन ढूंढ के मुझे इधर बता दे। So like this you can use the Gemini for analyzing your mails or reading the content. ताकि जो misinterpretation होते हैं कभी, okay, so that can be optimized. हमारे क्योंकि आज के AI के ज़माने में मेल अभी आपको AI बना के देने वाला है, पढ़ना भी आपको ही, पढ़ना है तो AI के थ्रू ही पढ़ लो, okay. So this way you can enable this feature and utilize it for your day-to-day operation. ठीक है, यूजफुल है। एनी क्वेश्चंस हियर? ओके, तो अभी हम थोड़ा अलग और मॉडल्स के लिए जाए। चलो, अभी मैं फिर से आपके फेवरेट टूल पे जाता हूँ, चैट जीपीटी, ठीक है? डोंट वरी, आई विल इंश्योर कुछ रिपीटेशन नहीं होगा। कितने लोगों को चैट जीपीटी नाम से बुलाता है, आपके नाम से? यस, नहीं बुलाता। कितने लोगों को बार बार समझाना पड़ता है, अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ, फिर से पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री देना होता है। कितने लोगों को दिक्कतें आती प्रॉम्प्ट के बारे में, आती, बराबर? तो रीजन क्या है मैं बताता हूँ। चैट जीपीटी जब आप लॉन्च करते हो,
आपकी लॉगिन एक जीमेल आईडी है और उसके थ्रू आप उसको एक्सेस करना शुरू करो, लेकिन वो ह्यूमन मेमोरी नहीं है ना, ताकि आपको समझता है और आपके बारे में जानता है, बराबर। ह्यूमन मेमोरी क्या है, अभी हम मिले एक बार, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो बैक ऑफ द माइंड की किस कॉन्टेक्स्ट में हमने एक दूसरे से बात करना है वो हमारे बैक ऑफ द माइंड रहता है। चैट जीपीटी को पता ही नहीं आप क्या चाहते हो, इसलिए दिक्कत आती है प्रॉम्प्ट में, बराबर। तो प्रॉम्प्ट इज द आर्ट, ओके, प्रॉम्प्ट इज व्हाट, आर्ट टू क्राफ्ट द थिंग्स व्हाट यू एग्जैक्टली वांट, कैसे पूछना है, बराबर। तो लेकिन ये एक जानने का इंफॉर्मेशन जो है ये कैसे कर सकते हो मैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका प्रोफाइल होता है जो कभी राइट साइड में हो या इधर लेफ्ट साइड आपके नाम के, आपको सेटिंग्स में जाना है, नोटिफिकेशन पर्सनलाइजेशन में जाके आपको इंस्ट्रक्शन में बताना है आप कौन है, आपकी इंफॉर्मेशन आप बता दो कि भाई कस्टम इंस्ट्रक्शन क्या चाहते हैं, तो चैट जीपीटी ने क्या करना चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशन इधर बता दो। तो एक्सपेक्टेशन में मैंने बता दिया है कि भाई मुझे जो भी कंटेंट दोगे प्रोफेशनल, मेरा ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इसके हिसाब से आप मुझे इन्फॉर्मेशन दें। थोड़ी बहुत लैंग्वेज जेनजी ऐड करना, क्योंकि मैं जेनजी को पढ़ाता हूँ, बराबर। जेनजी काफी स्मार्ट होते हैं, लेकिन रिसेंट सर्वे आ चुका है अभी, जेनजी आर हायर एंड फायर इन 1 ईयर। ओके, जल्दी हायर भी हो जाते हैं, एक साल में फायर भी किए जाते हैं, क्यों? Yes, because of their casual approach and attitude. Okay, काफी casual होते हैं. Fine. Next, आप आपके बारे में बताइए, आपका नाम बता दो, आपका ऑक्यूपेशन बता दो, आपके बारे में और भी थोड़ी इंफॉर्मेशन ऐड कर दो, फिर बाद में ये जो मेमोरी ऑप्शन है इसको एनेबल करो। जो मैंने बताया कि जब हम मिलते एक दूसरे को हमारी मेमोरीज होती है, अरे लास्ट टाइम हम ये बात किया था, और वही कॉन्टेक्ट लेके हम आगे बात करना शुरू करते हैं, बराबर। हम वही उम्मीद चैट जीपीटी से भी करते हैं, लेकिन चैट जीपीटी को कैसे एनेबल करना है, तो ये फीचर आपको ऑन करना है, ओके। तो मेमोरी ऑप्शन, एनेबल इट एंड सी द चेंज नाउ। सो आई जस्ट आस्क, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग, अभी जो एआई के बाद आने वाला है, ओके। ये देखो, और मुझे जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, हियर अ शार्प क्लीन जेनजी फ्रेंडली ब्रेकडाउन ऑफ क्वांटम, देखो, ओके। सी व्हाट इज माय नेम, बराबर। उसने टेल मी अबाउट माई सेल्फ, बराबर। देखो, आप जानता है वो मुझे, आप पूछो आपकी चैट जीपीटी को, याददाश्त चलेगी, ऐसा लगता है, बराबर। जानता ही नहीं बिल्कुल, बट ही नोज मी। देखो पूरा, ये प्रोफाइल आपको बना के दे देगा। नाउ चलो, ये तो सब कुछ सब लोग करते हैं। अभी आपके पास कुछ रिसर्च करके डेटा आता है, कितने लोग गूगल फॉर्म पे अपना सर्वे फॉर्म्स या सर्वे बनाते हैं, और डेटा आने के बाद क्या करते हैं आप? स्प्रेडशीट को क्या करते बाद में? एनालिसिस कैसे करते हैं? Statistical analysis. 50% work is outsourced to research,
जो स्टैटिस्टिक्स वाले रिसर्च करते हैं उनके भाई ये बता इसका एनालिसिस करके बताते बराबर। वो भी बोलता है यार मुझे 20-25 हज़ार लगेगा तब जाके मैं बना के दूंगा, ठीक है। और जब हम पर डे अरे ये तो मेरे को ये मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। So we do the analysis and the same analysis we publish in the research paper, correct। अभी देखो कैसे किया जाता है सब कुछ। तो मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ और ये ChatGPT आपके लिए कैसे काम करेगा। लेट मी जस्ट चेक हियर। एक HR शीट है, एक कंपनी का डेटा है। क्या देख सकते हो कितने एम्प्लॉइज है इधर? 50 एम्प्लॉइज बराबर। 49 है नहीं, ये पकड़ के चलना। 50 एम्प्लॉई है बराबर। नाम भी उनके ये क्या है? डिपार्टमेंट्स। दे आर वर्किंग इन विच डिपार्टमेंट्स? ऑपरेशन, सेल्स, IT, फाइनेंस, ओके। उनकी पोजीशंस भी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, उनकी सैलरीज है, लोकेशन है, परफॉर्मेंस है, लीव, रिजाइन, ये सब स्टेटस है। क्या आप ये डेटा देख के, सपोज आपने सर्वे करवाया या कुछ डेटा आपके पास है, कैन यू टेल मी इमीडिएटली कितने लोग एक्टिवली इन्वॉल्व एक्टिव मोड में और कितने लोगों ने रिजाइन किया और कितने लोग लीव में? कितना टाइम लगेगा ये सब करने में? हाँ, फिल्टर लगाओगे। मुझे लोकेशन वाइज बताओ कितने एक्टिव है, फिर और फिल्टर लगाओ। फिर मुझे सैलरी रेंज डिपार्टमेंट वाइज बताओ, कितने फिल्टर लगाओ बराबर। और AI के जमाने में ऐसा काम करने वाले को फिर से बोला यार क्यों गधा मजदूरी कर रहे हैं। यानी पहले IT यूज नहीं करते थे तो भी बोलते थे, अभी थोड़ा बहुत किधर हम एक्सेल सीखने लगे, यूज करने लगे, उतने में कुछ लोग बोलते अरे ये क्या गधा मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। यानी फिर और क्या करना चाहिए? अभी आपको एक दो मिनट में बताता हूँ कि आपको बिना एक्सेल ओपन किए पूरा एक्सेल का डेटा पता चल जाए। ओके, लेट्स सी कैसे। इधर मैं फाइल अपलोड कर देता हूँ, भाई ये फाइल के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये डेटा मैंने बता दिया ChatGPT को। चेक द फाइल नेम। हाँ वो फाइल है open है। So the data I am sharing, ठीक है। So now ये डेटा हमने दे दिया। Summarize the data। एक ही कमांड दे रहा हूँ मैं, summarize the data। सब कुछ बता दिया उसने, ये डेटा उसने समझ लिया। अभी नीचे समरी में देखिए वो बना रहा है। क्या आप देख सकते हो मिनिमम सैलरी कितना है? 40,000, मैक्स 1 लाख, मीडियन मेन। ये लगता है ना स्टैटिस्टिक्स। आपको कोई कंपनी का पूरा एनालिसिस करना है कि भाई ये कंपनी का रिसर्च किया है, ये कंपनी में एवरेज सैलरी कितना दिया जाता है। व्हाट इज द एवरेज सैलरी? कितना एवरेज सैलरी है? 68,200 बराबर। मैक्सिमम सैलरी कितनी है कंपनी में? बराबर। फिर बाद में सैलरीज अपीयर मॉडरेटली स्प्रेड अक्रॉस द रोल। परफॉर्मेंस स्केलिंग देख लो आप, फिर क्या है एवरेज परफॉर्मेंस?
एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एक्टिव कितने 20 ऑन लीव, बाकी के जो है ये अलग कैटेगरी है, ठीक है। चलो ये तो हुआ लिमिटेड डेटा। अभी मुझे पूछना है लिस्ट ऑल द एम्प्लॉयज फॉर लोकेशन इक्वल्स मुंबई। तो मुंबई लोकेशन में कितने लोग हैं? लिस्ट के स्पेलिंग भी गलत है तो भी वो समझ के बता देंगे, ठीक है। आप गुजराती में भी बात कर सकते हो उसके साथ, स्पीकर मोड पे ऑन करके, ओके। क्या पूछा मैंने? लोकेशन एम्प्लॉयज इन मुंबई कितने लोग हैं? 11, बराबर। लेकिन क्या हो गया गड़बड़? सभी बता दिए उसने, एक्टिव, रिजाइन और इज, बराबर। तो मैं क्या करता हूँ फिर से, लिस्ट all employees for location Mumbai and status equals active। क्या हमने एक्सेल ओपन किया? हम एक्सेल में गए ही नहीं, बराबर। देख सकते हो 3 लोग हैं, बराबर। उनके परफॉर्मेंस रेटिंग में देखो 5 है, ओके। फिर बाद में परफॉर्मेंस रेटिंग 1 का 1 है। कौन सा डिपार्टमेंट है ये? फिनांस, एचआर और सेल्स। लेकिन अभी मुझे पूरे लोकेशंस पे मुझे खाली एचआर डिपार्टमेंट के लोग चाहिए। कैसे निकालोगे आप? सब लोकेशन मिलके मुझे टोटल फिनांस के लोग चाहिए। चलो लिस्ट ऑल एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट इक्वल सेल्स, ठीक है। देखो खाली सेल्स के आएंगे, एम्प्लॉइज इन सेल्स डिपार्टमेंट, ओके। तो सेल्स एक्टिव 4 है, मुंबई में ही हो, ठीक है। अभी मुझे खाली पोजीशन एनालिस्ट करके चाहिए। टोटल पोजीशन एनालिस्ट में कितने हैं? ऑल एम्प्लॉइज विथ पोजीशन इक्वल कौन एनालिस्ट है कंपनी में, बराबर। तो यू विल गेट ओनली एनालिस्ट। लिस्ट एम्प्लॉय विथ हाईएस्ट सैलरी, यानी आपको जो चाहिए वो आप डेटा रिलेटेड आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ओके। तो लिस्ट एम्प्लॉय विथ हाईएस्ट सैलरी कौन है? देखो कितना है सैलरी? 1,19,206, ओके। लिस्ट एम्प्लॉय लोएस्ट सैलरी, तो अभी रिसर्च के लिए किसी के पास जाने की जरूरत है? यस। तो हम अभी इसमें पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी बनाएंगे, ओके। See the lowest paid employee, 32,000 salary, Peter Montgomery,
Now, prepare a complete data analysis for publishing the insights. Nine. Research. देखो अभी रिसर्च के लिए मुझे पूरा डेटा एनालिसिस बना के चाहिए। ये देखो तो फुल भाषा फुल करेगा ये देखो अभी પતિ જવાની છે ये पूरा रिसर्च एनालिसिस के लिए ये देखो पूरा બટ જનરલ લાવો તો देखो p वैल्यू एंड व्हाट इज और यही आप रिसर्च पेपर प्रिंट कर हो गया आपका रिसर्च पेपर रेडी डेटा ही होता है डेटा को हम डिस्क्रिप्टिव वे में डालते हैं स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आपके उसमें डालते हैं हो गया आपका एक बार लेकिन आपको चेक करना है कितना टाइम में रिसर्च पेपर होगा अभी कुछ प्लेगरिज्म की बात है इसमें कुछ भी नहीं डेटा आपका खुद का है आप कुछ कॉपी कर रहे हो नहीं है एआई का टूल लेके आपने जनरेट किया ओके सिंपली यू कैन से समराइज दिस इन साइंटिफिक फॉर्म ओके उससे पहले मैं बताना चाहूंगा क्रिएट ओके चार्ट्स फॉर द सेम सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन देखो मैं वो भी नहीं बता रहा हूँ हाँ ऑप्शन ए में खाली वन बता रहा हूँ क्या बताना है मुझे किस तरह का चार्ट ओके ऑप्शन ए वन इतना ही बात किया देखो ये कोड है अंदर का इसका चार्ट बनेगा डोंट वरी यूजफुल है चैटजीपीटी हो गया तो आपके स्टैटिस्टिकल चार्ट भी इधर आपके लिए बन जाते हैं ठीक है ओके अभी हम और भी काफी चीजों में चैटजीपीटी को एक्सप्लोर करेंगे इमेजिन करो आपको कॉलेज के बारे में जब इंफॉर्मेशन चाहिए वेयर डू यू गो कहाँ से आपको कॉलेज की इंफॉर्मेशन कोई भी कॉलेज कॉलेज का इंफॉर्मेशन यस वेबसाइट बराबर ओके नाउ व्हाट आई एम सेइंग जस्ट लिसन केयरफुली तो फ्यूचर में वेबसाइट नहीं होने वाला फ्यूचर विल बी ऑफ जीपीटीज ओके लोग चैट जीपीटी पे अभी हम लोग ही देख लो कितने
कितने लोग वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या चैट जीपीटी से? कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रहा है? चैट जीपीटी। तो आपको लगता है आप किसी के वेबसाइट पे नहीं जा रहे हैं तो लोग क्यों आपकी वेबसाइट पे आए? I want to know about the colleges. I want to know about a particular institution. कैसे पता चलेगा? तो GPTs बनने वाले हैं फ्यूचर में. Okay, GPTs are the transformers. Okay, तो ये GPTs कैसे बनाए जाते हैं ये बता रहा हूँ मैं आपको. Can you see here explore? ये मेरा एक GPT बनाया हुआ है. You can just use create GPT. आप आपका सब्जेक्ट लोगो वगैरह आप अपलोड कर दो. ओके अभी ये जैसा एक्चुअली आज इंस्टीट्यूशन आई नॉट अपलोड मैं खुद मेरा वाला जीपीटी अपलोड करता हूँ जिसमें मैं मेरा एक फोटोग्राफ अपलोड करके नेम ऑफ जीपीटी ये मैं रजिस्टर करके रखता हूँ प्रोफाइल इंफॉर्मेशन प्रोफाइल एंड अचीवमेंट ठीक है मैं इसको कस्टम वगैरह करके अपलोड फाइल्स ओके तो अभी जीपीटी में मुझे मेरी इंफॉर्मेशन अपलोड करवानी है सो आई विल गो टू द नॉलेज बेस तो मैं मेरा नॉलेज बनाऊंगा और ये मेरे बारे में मैं इंफॉर्मेशन यहाँ अपलोड करके आई विल शेयर दिस लिंक और भी मैं अपलोड करके रखूंगा मेरे बारे में कुछ वेबसाइट लिंक्स देना है जो भी कुछ अपलोड करना है सो एवरीथिंग आई विल अपलोड इट आप जब मेरी इंफॉर्मेशन सर्च करोगे तो जीपीटी विल टेल ओनली अबाउट मी ओके तो वैसे ही आप कोई सब्जेक्ट नॉलेज या आपका जिस डोमेन में रिसर्च चल रहा है आप उसका एक जीपीटी बना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप आपके कॉलेजेस की जीपीटीज बना के दो में जितना आप आईक्यूसी डेटा आपके अचीवमेंट है आप सब कुछ इधर अपलोड करते हो ये नॉलेज बेस बनेगा और आपके कॉलेज में कोई इंफॉर्मेशन या कोई कुछ भी सर्च करने जाता है तो जीपीटी उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा जो शायद हम भी प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे हमारे बारे में ओके आप देख सकते हो ये आपको और भी कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करना है आप ले सकते हो यहाँ से मैं यही इंफॉर्मेशन अभी टेस्ट करता हूँ कि मेरी इंफॉर्मेशन मुझे कैसे है टेल मी अबाउट ये देखो ये मुझे मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दे ये देखो तो ऐसा ये सब्जेक्ट नॉलेज ओके अभी मुझे खाली पेटेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए टेल मी ओनली अबाउट पेटेंट्स एंड इनोवेशन बाकी इंफॉर्मेशन मत बताओ अभी ये कहीं गूगल या कोई कहाँ से जनरेट किया हुआ कंटेंट है क्या नहीं This is just being generated based on the knowledge what I have given you. फ्यूचर में आप अभी आपके जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो उसका सिलेबस अपलोड करो उसके नोट्स अपलोड करो और ऑटोमेटिकली आपके उसके रिलेटेड ई बुक्स अपलोड करो आपका जीपीटी आपके लिए हर लेक्चर के लिए पीपीटीज बना के दे ये अभी तक ऐसा यूज आपने शायद सोचा भी नहीं आप जिस आईक्यूएसी क्राइटेरिया के अंडर काम कर रहे हो उसके रिलेटेड सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रखो या आईपीसी का ही पूरा जीपीटी बनाओ आपका पूरा एनालिसिस अभी रेडी हो जाएगा जब राइटअप लिखना होता है आपको यही राइटअप बना के दे देगा आपका ही इंफॉर्मेशन रहेगा ओके नाउ वी हैड प्रिपेयर वन एआई दोस्त अभी टाइम कम है लेकिन ये एआई दोस्त करके ऐप जल्दी आपको गूगल प्ले स्टोर में मिलेगा या आपके लिए अवेलेबल होगा अभी ये एआई दोस्त क्या करता है ये ईमेल के बारे में मैंने क्या बताया फिजिकली उसमें मैं इन्वॉल्व क्या मैंने टॉपिक दिया देन वो टॉपिक के रिलेटेड कंटेंट बन गया
लेकिन मैं एआई दोस्त को बताऊंगा, अभी रवि सर बता देंगे, अरे ये 4 स्पीकर आए थे, इनको एक थैंकिंग मेल डाल देना, ये फॉलोइंग उनकी ईमेल आईडी। क्या किया सर ने 2 मिनट में खाली इतना बना के उनकी मेल आईडी आपको खाली प्रॉपर्ली दे देना है। किसमें देना है? चैट जीपीटी। यानी वो एआई दोस्त का जो हमारा प्रॉम्प्ट रहेगा उसमें आप डाल दो। यू वॉन्ट इमेजिन इमीडिएटली वो मेल चारों लोगों को चले जाएंगे और क्या लिखना है वो एआई बना के दे देगा। यू डोंट नीड टू डू। अभी बोलेंगे कि सुविधा अभी आने वाली क्लास में। अरे आज क्लास में इतने लोग हैं, आपके अटेंडेंस की समरी लिस्ट बन जाएगी, अटेंडेंस शीट उसमें स्टोर हो जाएगी। लेक्चर का अटेंडेंस आपको कंपाइलेशन करना होता है ना, आज भाई इतने लोग आए, इतने लोग नहीं आए, और 2 लोग आए उसका जो फोटो स्कैन ले लो, अटेंडेंस का या जो डिजिटल है वो अपलोड कर दो। ये पूरा डेटा बनते रहेगा आपका। इतना ही नहीं, जो लोग एब्सेंट है वही वो एआई उनको कॉलिंग भी कर देगा उनके पेरेंट्स को। इनके पेरेंट्स के नंबर है, इनको कॉल कर दो। ये कुछ हमने कस्टमाइज कर दिया। आपको आज 4 एक्टिविटीज के रिपोर्ट देने हैं, सर को भी एक्टिविटी रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, एआईसीटी को भेजना पड़ेगा इमीडिएटली। भाई ये 4 दिन में ये सेशन हुए, ये टॉपिक उन्होंने लिए, ये टॉपिक के बेसिस पे इसका एक रिपोर्ट बनाओ जो एआईसीटी को देना है, और ये एआईसीटी के मेल पे ये भेज देना। अब इतना बात करके रख दो सर, आप बाहर जाते नहीं उससे पहले रिपोर्ट चलने देंगे। ओके, सो दिस इज हाउ नाउ दैट एआई दोस्त वी आर डिजाइन। उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन वाइज आपकी रिक्वायरमेंट समझ के उसको पूरा ऑटोमेट कर देते हैं। डेटा पूरा आपके साथ रहेगा। लोगों के सवाल है कि चैट जीपीटी को हमने डेटा दे दिया तो हमारा डेटा पब्लिक हो जाए। अभी मैंने तो मेरी इंफॉर्मेशन डाल दी है, आप चैट जीपीटी को पूछो कि भाई ये राजेंद्र पटेल चैट जीपीटी पे क्या कर रहा था, पूछो। अगर बता दिया तो आपको जवाब मिल जाएगा आपके सवाल। मैं क्या क्या ढूंढ रहा था, अगर वो बताता है, यानी चैट जीपीटी सिक्योर्ड नहीं है, बराबर। यानी अगर उसने इंफॉर्मेशन सब लीक कर दी, अरे ये वो ढूंढ रहा था, वो ये ढूंढ रहा था, ये सब कुछ सबकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना शुरू किया, कोई जाएगा चैट जीपीटी पे? नहीं जाएगा, बराबर। तो ये सिंपल आंसर है। चैट जीपीटी क्या बताता है, आप जिस तरह से पूछते हो और जिस तरह से जवाब आता है, ये हम हमारे नॉलेज ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं कि लोग कैसा पूछने के बाद कैसा जवाब आता है, ताकि नेक्स्ट टाइम सिमिलर वे में कोई पूछेगा तो उसको और मदद होगा। हम सीखते कि नहीं, कोई कैसे सवाल पूछता है तो ये भी सीखते कि नहीं हम, उसने क्या सवाल पूछा था और क्या जवाब दिया, अरे ये कैसे सोचा इसने। ओके, so that is how you can make your own bots। इसको बोला जाता है सेल्फ जीपीटी। चलो अभी इसकी एक एक मैजिक देखते हैं। कुछ एंटरटेन वाले में बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। पहले हमारे काम की कुछ देख लेते हैं जीपीटी। कितने लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं? ऑलमोस्ट सभी लोग। काफी लोग ट्राई करते हैं यार मेरा पेपर जल्दी बन जाए, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू, सी राइटिंग। ये कैटेगरी में है, मैं जा रहा हूँ राइटिंग कैटेगरी में। एआई ह्यूमनाइजर देख सकते हो, एआई ह्यूमनाइजर है, आप किस तरह से बात करते हो एज अ ह्यूमन बीइंग वो जवाब देगा। प्लीज प्रोवाइड बिलो द एआई टेक्स्ट टू ह्यूमनाइज। आप स्टार्ट करो। ओके, I want to publish a literature review on role of AI in pharmacology। Okay, मैंने क्या पूछा? पब्लिश करना है, तो क्या क्या मैं टॉपिक ले सकता हूँ? ओके, टेल मी स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर टू पब्लिश इन नेचर।
जर्नल के लिए बना के चाहिए। And when you read na, the context will be like almost human context में वो दिखेगा। AI ह्यूमनाइजर, इस तरह से आप आपके लेक्चर के नोट्स बना के बच्चों को ओके। अभी इतना ही नहीं, ट्रांसलेट इन गुजराती ओके। एक दिक्कत होती है, एक्यूरेसी 99% ओके, बराबर है, बच्चों को यूजफुल हो जाएगा। हेडेक ही नहीं हुई, आपका कंटेंट बनाओ ट्रांसलेट इन गुजराती ओके। कोई साउथ से आ गया, ले भाई टू बी ट्रांसलेट इन तेलुगु। I am efficient to reach in any language. चलो 1001 प्राइस बच्चे की कॉपी ठीक है। कोई साउथ इंडियन बच्चे भी आ जाते हैं गलती से, कोई है इधर साउथ आउट में, तो आप उनके लिए ट्रांसलेट कर सकते हो ओके। चलो हम दूसरा एक्टिविटी में जाते हैं, वीडियो एआई बाय इन वीडियो। आप अभी आपके लेक्चर के वीडियो और भी अलग तरीके से बनाओ, यूट्यूब शॉर्ट्स। अभी बच्चों को आप क्लास में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, अब बोर्ड पे यानी एआई के ज़माने में आप बोर्ड और चॉक लेके अगर आप कुछ पढ़ाना चाहते हो तो जब तक वो लाइन ड्रॉ नहीं होती है तब तक तो नॉलेज उनको जीपीटी से पता नहीं चलेगा। तो जो स्पीड ऑफ लाइट का ज़माना है उसमें हम ये स्पीड से जब जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप ब्रीच हो जाएगा, दे विल नॉट एंजॉय योर क्लासरूम सेशंस। अब उनकी ही सोच से जेन क्या सोचती है, देखो हमारे लिए लर्निंग है, एक्सपेरिमेंट करने में क्या है, वी आर द टीचर्स, और टीचर्स का काम है एक्सपेरिमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो। और ये लैब है फेलियर्स की, लर्न अबाउट द फेलियर्स, ये लैब होती है ओके। नुकसान तो नहीं होने वाला, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने में क्या है। तो आपका चॉक डस्टर वाला जो सेशन है और उसके बाद में जो सेशन आप जीपीटी का यूज करके आप पढ़ा रहे हो, तो चलो भाई आपको उनको आप एंगेज करो कि हमको आज ये टॉपिक पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे, तो ये वीडियो एआई के थ्रू जाओ। आप एक टॉपिक है डीएनए लाइफ साइकिल के बारे में एक यूट्यूब शॉर्ट बनाना है हमको, ठीक है। आप कैसे बनाओगे, तो हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट है यूट्यूब शॉर्ट बनाओ, तो उनको बोलना है, लेकिन आपको ना मोबाइल यूज करना है कुछ नहीं, कैसे बनाते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ यूट्यूब शॉर्ट वीडियो। टॉपिक वो क्या पूछ रहा है, टॉपिक बताओ, एक टोन बताओ, ठीक है, और बाद में टारगेट ऑडियंस। तो पहला क्वेश्चन है टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंड एजुकेशनल, बराबर। तीसरा स्टूडेंट्स। चलो ये तीनों क्राइटेरिया हमने दे दिए। अभी स्टूडेंट ये प्रोसेस में एंगेज हो रहे, दे आर गेटिंग एंगेज इन द प्रोसेस। डीएनए हम पढ़ाना शुरू भी नहीं किया अभी तक हमने, हम उनको प्रोसेस में लेके जा रहे हैं, लर्निंग फेज में। तो उसने एक स्क्रिप्ट बना के दिया है, अभी आपने डिसाइड करना है भाई क्या इनसाइड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी लाइज इज अ माइक्रोस्कोपिक कोड, द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ इटसेल्फ, ठीक है। पहला स्क्रिप्ट फॉलो करना है कि दूसरा वाला, आप बताइए। व्हाट्स डीएनए मेड ऑफ, लेट्स ब्रेक इट
के मैं खाली 2 प्रेस करूंगा, तो बच्चों को बोलना है भाई आप ये 2 वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो। वो पूछेंगे क्यों, भाई मैं एक्सपर्ट बैठे हम, तो ये पढ़ो फिर अपन देखते हैं उसका आउटकम। तो ऐसे जगह पे हमारी एक्सपर्टीज पता नहीं, ठीक है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग नाउ। उनको समझ में भी नहीं आएगा कि वो कंसेप्ट कैसे पढ़ लिया उन्होंने, ठीक है। तो अभी हमने ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया, टाइटल डीएनए इन 60 सेकेंड्स, ये सब कुछ है। वुड यू लाइक टू मेक जनरेट, हमको खाली यस बोलना है, यस। बच्चों को याद होगा आपने क्या है, आगे एआई लिखी जाएगा, हमारा काम खत्म है। फिर लास्ट में हमारा काम शुरू होगा, अलाउ। अभी इन वीडियो जो है बेसिक वीडियो बनाने के लिए फ्री में अवेलेबल है। बाद में आपको और अच्छा वीडियो बनाना है, उसके लिए थोड़ा क्रेडिट्स पे करना होता है। तो क्लिक टू वॉच डीएनए इन 60 सेकेंड्स। ये थोड़ा आपको मेल आईडी आपका कॉन्फ़िगर करके रखना है बस, जीमेल आईडी वगैरह, और ये आपका वीडियो बन रहा है। फिर बच्चे क्या करेंगे, ये वीडियो वॉच करेंगे। लेट देम वॉच द वीडियो, ठीक है। फिर ये वीडियो बनने के बाद आपका काम है सवाल पूछना। प्रिपेयर द क्वेश्चनर ऑन दिस वीडियो। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो गया, आपने एक्सप्लेन किया क्या, नहीं। हमने क्या किया, वी डिजाइन द प्रोसेस, हमने प्रोसेस सेट किया, ठीक है। वीडियो देखने के बाद अगर आपको लग रहा है और सही जवाब नहीं दे रहे, नाउ एक्सप्लेन देम, लेकिन आपने एटलीस्ट अभी ये तरीके से आप जाओगे। क्या लगता है 60 में से कितने बच्चे इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे? 100 बच्चे। देखो 60 में से 100 बच्चे तेरे बाहर के बैठे वो भी सुन के इतना इफेक्टिव होता है। आप ऐसे ही यूट्यूब करोगे, बराबर। तो आपने एंगेज किया कि नहीं, उनको लर्निंग प्रोसेस में लाया कि नहीं, यस। अभी ये वीडियो क्वालिटी देखना, यू विल बी सरप्राइज। अरे ये तो हम शूट करके भी नहीं बना सकते, थोड़ा टाइम लेगा। तब तक कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। टाइम भी डाल देते हैं मतलब। सर ये रिसर्च में क्या होता है कि वार्निंग, मतलब वार्निंग या ऐसा वो बोलते हैं कि एआई जनरेटेड कंटेंट आप नहीं डाल सकते, बराबर। तो भी तो ये आप बता रहे, टूल्स बता रहे, ठीक है, पर वो तो वहाँ तो फेल हो जा रहा है ना। नहीं हो रहा, मैं वही बताया, एआई ह्यूमनाइजर जो बताया मैंने। अब एआई ह्यूमनाइजर का यूज करो, मैंने एकदम सिंपल बताया। आपके पास डेटा आ गया, आपको रिसर्च के बारे में आपका डेटा देना है, हमने स्पीडीली जनरेट किया, राइटिंग कंप्रेस किया, एआई ह्यूमनाइजर को बोलो इसको अच्छे से स्क्रिप्ट करो, स्क्रिप्ट करके रख दिया। आप तो आपने कैसे कॉपी पेस्ट किया है नहीं, आप साइटेशन में डालो, खत्म है बात। तो अभी जब ये रिसर्च मेथोडोलॉजी की कुछ वर्कशॉप होते हैं तो उसमें हमें ऑफिशियली करना चाहिए, नथिंग रॉन्ग इन दैट, यू आर नॉट कॉपिंग। देखो वायलेशन किधर हो रहा है कि लिटरेचर रिव्यू किसी ने बना के दिया एआई ने, और वही आप एज इट इज पेस्ट कर रहे हो, वो तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आपका जो डेटा बिलोंग करता है उसको आप करो, और एआई ह्यूमनाइजर का हेल्प लेके उसको आपके लैंग्वेज में करो, टोन में सेट करो। मैंने टोन देखो पहले ही सेट करवा दिया सेटिंग्स में, बराबर। ये देखो ये वीडियो, हाँ जनरेट, I hope I answered your question. Yeah. देखो उसकी प्रोसेस, जब आप बच्चों को इस प्रोसेस में लाओगे, they will be really find engaging. वो मीन टाइम क्या करेंगे पता है, वो डीएनए आपके बनाने को दिया है ना वीडियो,
रिसर्च करना शुरू कर देंगे साइड में, आप बिना बताए वो रिसर्च करना शुरू कर देंगे। अब क्या कर रहे हैं पता है, हम एक स्टीरियोटाइप मोड में से उनको स्विच ही नहीं होने दे रहे इतना, या तो वो स्विच होना नहीं चाहते, हम भी होना नहीं चाहते और वो भी नहीं होना चाहते। इमेजिन करो आप हमारे जमाने का वो बड़ा टेलीविजन होता था ब्लैक एंड व्हाइट, वो अगर इनको दिखाओगे कितना टाइम बैठेंगे वो टीवी के सामने, उस पे वीडियो गेम खेलने के लिए बोलो कितना टाइम खेलेंगे वो, क्या लगता है 10 मिनट खेलेंगे? हाँ? यानी आप उनको उनके मन चाहे काम, लेकिन वो मोड है भाई ब्लैक एंड व्हाइट, बिल्कुल बैठेंगे भी नहीं हो। व्हाट आई मीन, तो यही हमको डिस्प्ले में ये चेंज करना है क्लास। आई होप यू लाइक इट। उनको पीपीटी भी नहीं चाहिए, वो खत्म हो गया पीपीटी अभी, मेरा एक भी पीपीटी रन नहीं किया मैंने। ओके, वरना आप डेली पीपीटी देख रहे हो। Now the trend is something different. आप गाड़ी चलाना सिखा रहे हो, लेकिन आप क्या बता रहे हो, मैं चलाऊंगा तो खाली देख, मैंने हाथ नहीं लगाना, सीखेगा क्या? नहीं, push them to drive. Okay? So हम अभी ऐसे मोड में, we are the facilitators, we are not the teachers now. हमारा वो प्रोफेसर वगैरह वो खाली अपॉइंटमेंट लेटर में होगा, रियल वर्ल्ड में we are just the facilitators. आप वीडियो की क्वालिटी देखना, आपको रियलाइज होगा अरे कितना इफेक्टिव, और ये वीडियो बनाने की कॉस्ट कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए जाती है। हाँ, 5.1 है, 399 का लाइसेंस है बस। अभी जो गो ChatGPT गो फ्री वो ये वाला ही, वो वाला ही फिलहाल फ्री में अवेलेबल है, क्योंकि परप्लेक्सिटी ने फ्री अनाउंस कर दिया था। यही चीज आप परप्लेक्सिटी देख लो, एयरटेल की यूजर हो तो फ्री, ठीक है। चलो वीडियो ऑलमोस्ट रिव्यू मोड में, और ये वीडियो था आपकी खुद की वेबसाइट बना, 1 मिनट। देखो मैंने बताया था, वो थोड़ा आवाज आया ना स्लो हो जाता है ओके, सही में वो इफेक्ट होता है, एआई नो इंटेलिजेंस इफेक्ट डिस्टर्ब होता है, जितना साइलेंट उतना स्पीडली हो जाता है। ओके, तो आप देख सकते हो जब ये सब आपका कंटेंट बनना शुरू होगा और आप जब कंपाइल करोगे, आपके वेबसाइट पे आपको रखना है। अभी बोलोगे सर आप काम बढ़ाने की काम करो, तो आपकी वेबसाइट भी 2 मिनट में कैसे बनेगी वो भी मैं बता, मैं प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। वेबसाइट कितना बताया मैंने, खाली 2 मिनट, 2 मिनट में आपकी खुद की प्रोफेशनल वेबसाइट बन जाएगी। और डिजाइन, एक डिजाइनर को अगर आपने 1 महीना भी दिया तो भी वो बना नहीं पाएगा। इतनी बढ़िया वेबसाइट आप खुद बना सकते हो खुद के लिए। ओके, कितने लोगों की खुद की वेबसाइट है, इधर आप आपके रिसर्च पेपर, आपकी ये सब लेक्चर कंटेंट आप बनाना शुरू करो। अभी जमाना है हमको खुद को भी सेल्स करना है, 4 रूम के बाजू में हमारी अभी पहचान होनी चाहिए। ओके, so now see the video. What's DNA made of? Let's break it down. Fast. DNA stands for deoxyribonucleic acid. It's a double helix. Imagine a twisted ladder. Each step is a pair of nitrogen bases. A with T, G with C. The sides? That's the sugar phosphate backbone. This structure lets DNA replicate itself perfectly to pass genetic information to the next generation. And that's how you're made from molecules of information. You are the one to validate. Information सही थी, इमेज भी थोड़ी बहुत सही थी, ठीक है। आप ये प्रोसेस में डालो, आप अगर दिन भर भी उनको डीएनए बढ़ाओगे, ठीक है, तो भी शाम को
जो डीएनए का होना है वही होने वाला है, ओके। 5 मिनट में आप ये टाइम स्पेंड करोगे तो डीएनए काफी इफेक्टिव रिफ्लेक्ट होगा। इसके ऊपर आप क्वेश्चन पूछो, पर जब तक वो वीडियो बन रहा है देखो कितना रिसर्च करते हो भी देखने वाली। क्या हो गया, लर्निंग का लर्निंग हो गया, हमारा भी स्ट्रेस कम करवा दिया हमने, स्मार्टली हमको भी काम करना है। वरना दिन भर आप 2 घंटा 3 घंटा खड़े रहो कुछ समझ में नहीं आने वाला। इट इज द वेस्टेज, बराबर। उसका रिफ्लेक्शन जब हम पेपर एसेस करते हैं तब दिखता है। अरे यार इतना मेहनत से पढ़ाया कुछ लिखा नहीं। आपको टेस्ट करना है, आप इस तरह से एक मॉड्यूल आप पढ़ाइए, उसके ऊपर टेस्ट भी लीजिए और उनका परफॉर्मेंस देखिए। So the teachers who will adopt the AI, teachers with AI will survive. टीचर्स इसलिए इंस्टीट्यूशन ने AI ऐसा टॉपिक देके आपको एम्पावर करवा रहे, बराबर। तो आप एम्पावर कैसे होगे, तो आप प्रैक्टिस करोगे। वरना जो स्टूडेंट हमारा सेशन में पार्ट लगाते हैं वैसा ये 2-3 दिन का वर्कशॉप तो वैसे ही हो जाएगा, सीखा सब लेकिन अप्लाई कुछ नहीं किया। सो प्रैक्टिस इट, ओके। व्हेन यू प्रैक्टिस यू विल आल्सो एंजॉय द प्रोसेस। थोड़ा अभी हमको बजट बढ़ाना रहता है, तो ये टूल्स में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, इसका फायदा आपको ही होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कुछ क्रेडिट, अरे यार ये कोड मैं इतना इफेक्टिव $20 इन्वेस्ट करके अच्छे से मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, तो व्हाई नॉट। 1 महीना लेकर फटाफट वीडियो बना के रेडी कर दो, ओके। या 4 लोग मिलकर एक वीडियो को अपना लाइसेंस ले लो, वो भी परवड़ता है, ओके। चलो ये हुआ एक, मैंने कुछ कमिटमेंट दे दिया, फिर बात करते हैं क्या था, वेबसाइट, ओके। तो अभी आपको वेबसाइट पे अगर जाना है, ये काफी जीपीटीज है। हाँ, कोई म्यूजिक में इंटरेस्टेड होता है या सॉन्ग मेकिंग या कुछ, तो ये भी आप कर सकते हो, म्यूजिक बना सकते हो। या रहमान जैसा म्यूजिक कंपोजर, प्रेजेंटेशन, वीडियो, आपको वेबसाइट बनाना है, बराबर। सो क्रिएट अ वेबसाइट फॉर मी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, आप एक बिजनेस बता देना, इसलिए बनानी है वेबसाइट, बिजनेस नेम एंड 1 लाइन डिस्क्रिप्शन। ये मैंने पर्पस दे दिया, वेबसाइट क्यों बना रहे हो, 2 ही मिनट, अरे वो स्लो हो जाता है फिर से, ठीक है। URL with escape business name and description, तो उसने कुछ बना के रख दिया है, ओपन लिंक, ओके।
process of creating the website. Okay. देख लो होम पूरा प्रोसेस बन रहा है बराबर आपके कांटेक्ट नंबर देखो लोकेशन गुजरात उसने बराबर ले लिया ठीक है मेरा मेल आईडी ले लिया मेरे अवेलेबल आवर्स कोई मुझे कांटेक्ट करना चाहता है इट इज हैपनिंग लाइक वन रिसर्चर फ्रॉम हैदराबाद इज देयर एंड यानी वो बंदे ने स्टूडेंट है वो स्टूडेंट के जो टीचर थे वो मुझे जानते थे वो थोड़ा रेफरेंस देके he approached me he also searched through LinkedIn and he connected with two professors from अर्जेंटीना और हम ये 3-4 लोग मिलके उसने कोलैबोरेट किया हमको सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया और सब एक टाइम जोन में आके मीट होता है और उसका एक रिसर्च जो बना रहा है उसके रिलेटेड हमसे वो इनपुट्स लेके डूइंग दैट तो अभी दुनिया छोटी हो चुकी है लिमिटेशंस ऐसे कुछ रहे नहीं है आप कहीं भी पहुंच सकते हो ओके तो आप आपके अवेलेबल लोकेशंस आपको कुछ मैसेज चाहिए ये सब आप इधर रख सकते हो ठीक है एंड यू विश की साइट कैसी दिखती है तो प्रीव्यू मोड में जाइए और देख लो आपकी बढ़िया वेबसाइट और एक पब्लिश बटन पे क्लिक करने के बाद डोमेन खरीद लो आपका वेबसाइट कितना टाइम लगा आपको एडिट करना है वहाँ पे आप एडिट करके इंफॉर्मेशन एडिट कर दो अभी इतना बनाने के बाद एक BSc IT के स्टूडेंट को आप इंटर्नशिप दे दो भाई रेगुलरली मेरी साइट अपडेट ये जो भी है उस पर आप अपडेट कर दो तो ही इज ऑल्सो लर्निंग सो यू कैन जस्ट सी रिसर्च पेपर रिपोजिटरी लेक्चर तो ये अभी पेजेस आपको जोड़ने हैं अभी ठीक है अभी ब्लैंक आएगा तो इधर आप आपका इंफॉर्मेशन ऐड कर दो अभी जैसा मैं आज सेशन लेके आया ये फोटोग्राफ्स है अपलोड कर दिए आपके ब्लॉग्स है राइट अबाउट योर ब्लॉग्स पब्लिश द ब्लॉग्स सर्विसेज आप क्या क्या काम लोगों के लिए दे सकते हो नाउ मेनी इंडस्ट्रीज अलग अलग रिसर्चर्स की जरूरत है इंडस्ट्री एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स कितनी तो भी एडटेक कंपनीज है जो एडटेक कंपनी ढूंढ रही है सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपको एक ही काम करना है लिंक्डइन पे जाओ आपका प्रोफाइल अपडेट कर दो एक लाइन डाल दो SME कंसल्टेंट फॉर फार्माकोलॉजी या फार्मेसी SME सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बोला जाता है ओके आप SME कंसल्टेंट अगर आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में डालते हो देखो आपको कितने एडटेक कंपनीज आएंगे और जो वीडियो या ऑनलाइन ट्यूटर्स बनाना है उसमें आपको इंगेज किया जाता है एंड दे पे गुड अमाउंट ओके आवरली आपको एक 4 से 5 हज़ार मिनिमम पे किया जाता है आवरली ओके तो सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल यानी आपको क्वालिटी कंटेंट देना है सो लाइक दिस द थिंग्स आर देयर आप अगर विजिबल नहीं रहोगे डिजिटल दुनिया में आपका प्रेजेंस कहीं भी नहीं रहेगा यू आर नॉट नोन देम ओके तो काफी बार हमारे पास टैलेंट होगी वो खाली हमारे साथ रहता है बट मेक इट विजिबल नाउ ओके फाइंडिंग दिस यूजफुल आपको सही लग रहा है पब्लिश कर दो एक बटन प्रेस करोगे यहाँ पे वो प्लान बताएगा पब्लिश मोड देखो $42 पर मंथ यहाँ से वो पैसा निकाल के $42 ने ऑलमोस्ट 4,000 ओके 4,000 खर्चा आपका उसके हिसाब से बिलिंग हो सकता है ये हुआ वेबसाइट ठीक है कैसा बनाओगे ये GPT से जाना है मार्केटिंग एंड बिजनेस नेक्स्ट अगेन आई एम गोइंग टू अदर GPTs
होगा, ओके। बाद में फिटनेस डाइट प्लान, देयर आर पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन दैट, ओके। शायद अभी थोड़ा लास्ट 10 मिनट्स है तो मैं जैसे एक रैप अप करता हूँ। इतना ही नहीं, आपको डेटा एनालिसिस देख सकते हो आप, फिटनेस डाइट का आपका पूरा रिसर्च एनालिसिस का काम इसमें से हो जाएगा, ओके। आपको डेटा देना है, ये पूरा एनालिसिस करके दे देगा, डेडिकेटेड, उसका काम वही है, ओके। अभी कोई लोग एस्ट्रोलॉजी भी देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं। पहला नंबर आपके लिए सर रवि सर ये देखो प्रोफेशनल एकेडमिक असिस्टेंट, ये भी एक जीपीटी अवेलेबल, लीगल एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। फाइंड माय सेलिब्रिटी, ये तो बाकी के छोड़ दो, ये एस्ट्रोलॉजी वाला है। ट्रैवल गाइड, आप बिफोर गोइंग फॉर विद एनी एजेंट, आप ट्रैवल गाइड से सब इंफॉर्मेशन लेंगे, ओके। तो आप एस्ट्रोलॉजी के लिए जाओगे, आपको आपका डेट बर्थ जो भी है और एड्रेस देख लेना। रवि सर Okay. Anyone from IT, computer science? Yes. आगे सॉफ्टवेयर यानी स्पेशल ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिसका पूरा कोडिंग स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। And these are less ना, C4 पे क्लिक करने के बाद और भी कैटेगरी दिखेगी, ओके। मैथ पढ़ना है, इवन आपके बच्चों के लिए टीचर लगाने जरूरत नहीं, सीपीटी के बाद बिठा दो, एक्सप्लेन फिजिक्स कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन डिराइव्ड डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, ओके। So this is how you can explore this particular thing. इसके अलावा अभी मैं और एक चीज लास्ट जेम्स पार्क, ये भी दुनिया में बहुत फेमस है अभी। इसके पर्पस थोड़े कंप्यूटर साइंस आईटी के बच्चे अगर है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू आप देख सकते हो। एआई शीट्स, एआई स्लाइड्स आप देख सकते हो, सब कुछ इसमें, एआई वीडियो, ओके। ये सब कुछ एआई मीटिंग नोट्स, these are the features which are available, ओके। आप एआई शीट्स ये यूज करोगे, ये पूरा एक्सेल ऑटो पायलट मोड में, यहाँ पे आपको एक्सेल शीट देनी है, ओके। और ये पूरा आपके लिए आप क्वेश्चंस पूछते रहो बस। एआई स्लाइड्स, जनरली स्लाइड स्टार्टिंग से शुरू होते हैं, हम एंड कर रहे हैं स्लाइड से। ऐड माय टेम्पलेट, आपको किस तरह की स्लाइड्स बनानी है आप सिलेक्ट करो। मॉडर्न जापानीज एजुकेशन रिपोर्ट, ओके, या माय लैंग्वेज ओनली, ठीक है। किस फील्ड में बनाना है आपको, यूज दिस टेम्पलेट, ओके। और टॉपिक दे दो, प्रेजेंटेशन ऑन एजेंटिक एआई। तो ये बनते रहेगा, तब तक मैं एजेंटिक एआई का एक ब्रीफ कर देता हूँ। एजेंटिक एआई इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, यानी क्या, अब एजेंट को सब बता देना है। मैंने एक एग्जांपल भी दिया कि मुझे ये 4 लोगों को मेल भेज दे, बस काम खत्म।
भाई मेरा अभी इंडिगो का फ्लाइट था वो कैंसिल हो चुका है, तुम दूसरा फ्लाइट मेरे लिए ढूंढो, बुक द टिकट फॉर मी, साथ ही साथ होटल भी बुक करके रखो, पेमेंट करवा देना जो भी कुछ है, तो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय द बॉट, आपको यहाँ पैनिक नहीं होना है। जस्ट इमेजिन आज जो 1000 फ्लाइट कैंसिल हुई, अगर कोई एजेंटिक एआई यूज करता तो अगर वो बोल के रखता ये फ्लाइट कैंसिल होने के बाद इमीडिएटली बुक इमीडिएट फ्लाइट फॉर मी, तो टेक्नोलॉजी इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आपको मदद करती है। आप देखिए पूरा स्लाइड का स्ट्रक्चर बनते जा रहा है। ओके ये सोर्सेस है जहाँ से वो इंफॉर्मेशन बनाते जा रहे हैं। तो ये और एक एजेंट है, ये लास्ट उसको पूछता हूँ मैं। Are we going to start with lectures or should we summarize the lecture? We can absolutely go whichever way you prefer. If you want to jump right into the lecture, we can do that. If you'd rather do a quick summary first, that's totally fine too. Just let me know. So this way you can use the technology again in the classroom. Okay. Yeah, that's the idea. So just let me know if you want to dive into the main content or do that quick summary first, and we'll get rolling. Shall you take a break? Of course. We can definitely take a little break. Just let me know when you're ready to jump back in, and we'll pick up right where we left off. So you can see the preview of the slides, and this is how your slides can be prepared. तो इसीलिए रीजन पता चला पहले स्लाइड्स नहीं बने, होते सारे ऐसे बना के लाया होगा। मैं स्लाइड दिखाना ही बंद कर दिया। So we'll take the questions or we'll conclude. क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन ले सकते हैं। You might be thinking आप लोग क्यों पूछे, AI क्यों पूछेंगे? AI को मत पूछो क्या क्वेश्चन पूछे इसको। Okay, thank you. આજે આપણે જે શીખવ્યું એ અમારા માટે લાઈફ ટાઈમ માટે એક રેફરન્સ બની રહેશે. હવે હું પ્રોફેસર કાજલ પટેલને વિનંતી કરું છું કે તેઓ ડોક્ટર રાજેન્દ્ર સરને સ્મૃતિ ચિહ્ન અર્પણ કરે.